Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. So in this pro tip video, we're gonna be seeing that how we can convert a string to a encode string, and then we have to decode that encoded string again to a normal string. So guys, this can be used in some complex sensitive scenarios. For example, if you are saving some credentials of the clients and which don't need to be shared on orchestrator as well, so we can use this method over here, right? Let's get started. So for example, I have a string called str input and उसके अंदर hello world मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. So first of all, the method for that will be I'll be using an assign activity. ठीक है, इसको आप default भी यहाँ value रख सकते हो इसकी str input की hello world. So we'll be using another assign. मैंने बहुत सारे assign use करने, that's why I have used multiple assign over here. Okay. So what we are doing over here, हम लोग यहाँ पे पहले इससे bytes को लेंगे. We will be converting this string into bytes. So for that, let's create a variable called bytes. Okay. Okay. So यहाँ पे हम लोग एक मेथड आता है आपके pb.net पे system.text dot encoding dot utf8. This is the method of changing it, and we have to say get bytes. Now, जैसे ही आप get bytes करेंगे तो what we will be doing, it will be converting every character as bytes. Why character? Because यहाँ पे लिखा char as character array as byte. The output will be as byte array. Okay. And second, we can also get this output as integer. Then यहाँ पे हमें char का जो character है उसका index यहाँ पे डालना पड़ेगा. Right? But what we are doing, we will be using the first method over here. Okay. Okay. So we will be using str input. So it will be what? It will be procuring all that bytes from this input and converting it into byte array, right? Okay. So for that, let's create this part. Let's go to string, sorry, this variable byte, and इसको हम बना देंगे array of t, and from here we can go browse types system dot byte. I have to type over here, so it will be creating a byte, राइट, एरे ओवर हियर. ठीक है, ये मेरी बाइट एरे यहाँ पे बना देगा. ठीक है. ओके, अगर मैं इतने पार्ट को रन करता हूँ, लेट्स डू वन थिंग. इसको यहाँ ना डाल के हम इसको यहाँ डालते हैं, बिकॉज आई नीड टू बी शोइंग यू गाइस एज वेल. और व्हाट वी कैन डू, हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पहले था. ठीक है, एंड वी कैन यूज अ राइट लाइन एक्टिविटी एज वेल ओवर हियर, एंड आई विल बी शोइंग यू bytes dot to string. सो दिस इज अ बाइट एरे, एंड हम आपको दिखाएंगे दैट इसके अंदर क्या आ रहा है. ठीक है, आई बी यूजिंग फॉर ईच क्विकली एंड देन राइट लाइन ओवर हियर. ठीक है, आई कैन से current item and the this part. The argument type will be system.byte, and यहाँ पे हम डालेंगे bytes. ठीक है. सो जैसे ही आप डालोगे ऑटोमेटिक इसको यहाँ पे ले लेगा, और यहाँ पे आई बी चेंजिंग इट टू डॉट टू स्ट्रिंग. ठीक है, so let's start it and let's see that what it is giving us. That byte variable, bytes array है, क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझे. So आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने हेलो वर्ल्ड को, लेट्स सी ये हेलो वर्ल्ड काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, HELLO स्पेस, स्पेस भी एक काउंट है, राइट, WORLD. सो दिस इज हेलो वर्ल्ड, राइट. यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इट इज कन्वर्टिंग it to a UTF-8 format and getting all the bytes from that specific string and converting it into a byte array. Array है, that's why we are iterating inside of it. ठीक है, गॉट इट, इतना पार्ट क्लियर है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसको UTF-8 फॉर्मेट पे यहाँ पे आपका क्रिएट कर दिया. सॉरी, माय बैड, मैंने यहाँ पे UTF-8 फॉर्मेट पे इसको क्रिएट कर दिया. ठीक है, and what I have done, I have created this as a byte array. ठीक है,
बाइट्स इसमें से इसने प्रोक्योर किया है एंड इसको एरे में कन्वर्ट करना है, किसका, बाइट एरे में, ठीक है, गॉट इट गाइस। नाउ लेट्स यूज अनदर असाइन एक्टिविटी एंड मैं इसको दूंगा बेस 64, यहाँ पे I'll give str, ठीक है, दिस विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कन्वर्ट टू बेस 64 स्ट्रिंग, ठीक है। ये आपका इन एरे एस, देखो क्या लिखा है, ये एक्सपेक्ट ही करेगा आपसे दैट यू हैव टू प्रोवाइड सम एरे एज ऑफ टाइप बाइट, बाइट एरे यहाँ मुझे प्रोवाइड करनी है, इसका आंसर क्या होगा एज स्ट्रिंग, तो मुझे इसका इस वेरिएबल का मुझे यहाँ पे आई डोंट नीड टू चेंज द वेरिएबल टाइप ऑफ दिस एरे बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज क्रिएटेड एज स्ट्रिंग ओनली, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे आई कैन गिव दैट bytes, right? Okay, so this will be, now let's see over here, str base 64 and इसको मैं मुझे के लिए comment out कर देता हूँ. Let's try to run this and see what it is saying. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरा हेलो वर्ल्ड है, मेरे जो मैंने यहाँ पे लॉजिक बिल्ड किया है उसने मेरे हेलो वर्ल्ड को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, into a base 64 string, means now this is my hello world over here. I hope you guys can see this sgv something something over here. So what we have done, we have encoded our hello world, हमने अपने hello world कोई भी string को मैंने encode कर दिया है. Nobody can understand that what this string is, what this and string means, ठीक है. I hope you guys are getting it, ठीक है. यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने अपने इसको अपने हेलो वर्ल्ड को एक बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आगे भेज दिया है ना. आई कैन यूज दिस स्ट्रिंग ओवर है, ये मैं स्ट्रिंग यूज कर सकता हूँ, ठीक है, एज अ एनकोडेड स्ट्रिंग, ठीक है. ओके, अब नाउ मुझे क्या करना है, अगर मुझे बोला जाए कि आई नीड टू डिकोड दिस स्ट्रिंग अगेन, मुझे ये स्ट्रिंग को क्या करना है, डिकोड करना है वापस से, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, सो नाउ व्हाट वी हैव गाइस, हम लोगों ने एक बार जस्ट रिकैप ऑल दिस, हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, हमें उसे कन्वर्ट करना है एक एनकोडेड फॉर्मेट में एंड अगेन मुझे उसे डिकोड करके वापस उसको हेलो वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है. तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया दैट फर्स्ट स्टेप वाज टू गेटिंग सम बाइट्स आउट ऑफ दिस पार्ट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू अ बाइट एरे, ठीक है, हम लोगों ने कर दिया, हम लोगों ने आपको फॉर ईच में चला के दिखा भी दिया, ठीक है. द सेकेंड पार्ट वॉज टू कन्वर्ट दैट बाइट एरे टू अ बेस 64 स्ट्रिंग, यहाँ पे हम अपना कन्वर्जन कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसे क्या कर रहे हैं, UTF-8 फॉर्मेट में उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एंड वी आर क्रिएटिंग अ बाइट एरे आउट ऑफ इट, ठीक है. एंड our base 64 string क्या करता है, it expects a byte array and it will be sending that output in the form of a string, that's why we have used a string underscore बेस 64 एरे, ठीक है, बेस 64 ये आपके वेरिएबल का नाम है. नाउ अब क्या है, नाउ द डिकोडिंग स्टेप्स स्टार्ट, यहाँ पे हम डिकोड करने वाले हैं. सो लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड डिकोडर, ठीक है, डिकोडर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है एंड फॉर दैट आई हैव टू यूज सिस्टम डॉट कन्वर्ट, ठीक है, लेट्स यूज सिस्टम डॉट कन्वर्ट एंड यहाँ पे क्या आएगा, नाउ आई हैव टू यूज फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग, वाई फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास अब जो मेरा एनकोडेड आउटपुट है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, दैट स्ट्रिंग इज इन फॉर्मेट ऑफ बेस 64 स्ट्रिंग, ठीक है. यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है एस एस स्ट्रिंग, सो विल बी गिविंग str underscore base 64 as string and this output will be of byte array output again. तो मुझे यहाँ पे अपना जो वेरिएबल यहाँ लिख देख सकते हैं आप लोग एज बाइट एरे, ठीक है. तो मेरे को ये जो वेरिएबल है मेरा डिकोडर, राइट, आई हैव टू चेंज इट टू अ बाइट एरे. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट गाइस. मैं सब कुछ बाय द बुक कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग माई सेल्फ. नाउ द लास्ट पार्ट, ठीक है, ये पार्ट इतना यहाँ यहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया था ये क्या है. मैं आपको दोबारा से डिकोडर चला के दिखा देता हूँ. ओके, सो आप लोगों ने देख लिया दैट कैसे मैंने यहाँ पे एक डिकोडर वेरिएबल बनाया है, ठीक है,
that is of type byte array. And what we have done after we have created the base string, हम लोगों ने base 64 की string बनाई है, that is of type normal string. इसको हमने कैसे बनाया है, convert dot to base 64 string. ये एक्सपेक्ट करेगी आपका बाइट एरे एंड इट विल बी गिविंग आउट एज आउटपुट ऑफ बाइट एरे ओनली. ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट. ठीक है, राइट. ये आपका, सॉरी, ये आपका जो आउटपुट देगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे देगा. देन आई हैव क्रिएटेड अनदर वेरिएबल ऑफ डिकोडर. मैंने डिकोडर नाम का वेरिएबल बनाया है. एंड देन व्हाट आई हैव यूज सिस्टम डॉट कन्वर्ट फ्रॉम बेस 64 स्ट्रिंग. मींस आई नीड अ बेस 64 स्ट्रिंग ओवर हियर दैट वी हैव ओवर हियर. मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ये मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे बना रखा है पहले से. ठीक है, ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ इनपुट किया. इसका जो मेरा आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बेस 64 एज स्ट्रिंग. बट इसका जो आउटपुट है इट विल बी इन द आउटपुट फॉर्म ऑफ पे बाइट एरे. ठीक है, यहाँ मेरा बाइट एरे फिर से बन के आ गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब मैं आपको ये डिकोडर चला के दिखाने वाला था. इट इज़ व्हाट इट विल बी डिकोडिंग अगेन द स्टेप्स ओवर हेयर. जो मैंने हेलो वर्ल्ड को यहाँ पे बाइट्स में कन्वर्ट किया था, ये बेस 64 बन गया. बेस 60 वापस से डिकोडर में कन्वर्ट कर रहा है, राइट. सो इट विल बी थ्रोइंग ऑल दो स्टेप्स अगेन एंड अगेन. आप देख सकते हैं वही सेम नंबर्स आए हैं मेरे पास. यही सेम नंबर आ चुके, 72, 101, 108, एवरीथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ एरे. ये एरे है मेरे पास. ठीक है, नाउ आई विल बी क्रिएटिंग अ दिस पार्ट str स्ट्रिंग बनाऊंगा. ये str से आउट. ठीक है, एंड फॉर दैट नाउ दिस इज द लास्ट असाइन एक्टिविटी. system dot text dot encoding. ठीक है, डॉट utf8 बिकॉज दैट वाज utf8 फॉर्मेट. यहाँ पे जो डिकोडिंग हमें मिला है, ये वाला आउटपुट है, ये क्या है, आपका UTF-8 फॉर्मेट का टाइप. तभी UTF-8 फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एंड आई विल बी राइटिंग ओवर हेयर, सॉरी, आई विल बी राइटिंग ओवर हेयर गेट. नाउ हमने पहले क्या बाइट्स ली थी, अब हम क्या करेंगे, उस बाइट में से हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे. तभी तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए ना हमें. डिकोडर, यहाँ पे डिकोडर आ जाएगा आपका. यहाँ आप देख सकते हो बाइट्स एज बाइट एरे, एंड इसको जो आउटपुट होगा वो स्ट्रिंग होगा. गॉट इट, इतना पार्ट आपको क्लियर है. यहाँ पे आई डू नथिंग बट आई जस्ट डू लाइक दिस. इसको मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ एंड आई विल बी यूजिंग str आउटपुट ओवर हियर. ठीक है, हमको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, वो भी आप देख सकते हैं, दैट इज हेलो वर्ल्ड अगेन. ये मेरा आउटपुट यहाँ पे वापस आ गया. ठीक है, सो गाइस दिस इज वेरी बेनिफिशियल व्हेन यू आर वर्किंग विद क्लाइंट जिनको ऑर्केस्ट्रेटर पे नहीं काम करना है, जिनको बिल्कुल अल्ट्रा टॉप सीक्रेट आपका स्ट्रिंग चाहिए, सो दे कैन बी यूज. एंड ये मैं यहाँ नहीं रखूँगा, वी कैन कीप इट इन अ कॉन्फिग डिक्शनरी. ठीक है, हम कोई अलग से फाइल बना के वहाँ से उसको हम प्रोक्योर कर सकते हैं डेटा, राइट. वी कैन ऑल्सो प्रोक्योर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ की वैल्यू पेयर. जब हम इसको डिक्शनरी बनाएंगे तब कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. ये डेटा प्रोक्योर करना इज नथिंग बट द मेन थिंग इज ऑल दोज 4 स्टेप्स दैट आर यूज्ड इन द एनकोडिंग एंड द डिकोडिंग प्रोसेस. सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा. मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये मेरा स्ट्रिंग है. आई नीड टू कन्वर्ट इट टू अ एनकोडर. एनकोडिंग फॉर्मेट में क्रिएट करके मैं वापस से इसको वापस से इसको इसी फॉर्मेट में लाना है. ठीक है, डिकोड करना है. ठीक है, मैंने इसे एनकोडिंग में क्रिएट करने के लिए system dot text dot encode, this is the way that is it is being created. You don't have to मतलब इसको रटो में समझो. हम क्या कर रहे हैं, system dot text एक क्लास है आपकी VB.NET की, इसको हम यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग द फंक्शन एनकोडिंग. इसके अंदर आपकी UTF-8 का क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एंड वी आर गेटिंग द गेट डॉट बाइट्स फंक्शन फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी. गॉट इट. आपकी क्लास है सिस्टम डॉट टेक्स्ट और एनकोडिंग की, उसके अंदर आपके पास एक प्रॉपर्टी है UTF-8. ठीक है, वी आर कॉलिंग गेट बाइट्स फंक्शन, राइट, एंड इट विल बी एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रिंग. गॉट इट. ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, इट इज कन्वर्टिंग दैट योर स्ट्रिंग इनटू UTF-8 फॉर्मेट एंड क्रिएटिंग बाइट एरे आउट ऑफ दैट स्ट्रिंग, योर स्ट्रिंग. ठीक है, मैंने आपको समझाया है. अब मेरे पास स्ट्रिंग आ गया. सो व्हाट विल बी डूइंग, आई विल बी कन्वर्टिंग दैट स्पेसिफिक बाइट. UTF-8 फॉर्मेट आ चुका मेरे पास, स्ट्रिंग के फॉर्मेट पे नहीं है वो, एरे के फॉर्मेट में है. किस एरे के फॉर्मेट में है, बाइट एरे के फॉर्मेट में. ठीक है, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी क्रिएटिंग दैट
array into a converting that array into a string, encoded string. यहाँ तक मेरा encoded string बन चुका है. str चाहिए ना, base 64 लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट. आई होप दैट यू आर फॉलोइंग मी गाइस. अब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड ऐसे क्रिएट करने का, excuse me, if you have a method convert dot to base 64 string, it expects a byte array, but इसका जो आउटपुट होगा वो स्ट्रिंग पे होगा. ठीक है. मैंने आपको दिखाया था दैट स्पेशल सम स्पेशल कैरेक्टर्स इसके लास्ट में इक्वल टू था, एस जी वी समथिंग समथिंग. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग है वो एनकोड हो चुका है पूरा. गॉट इट. एंड मैंने भाई एक अलग से यहाँ वेरिएबल बनाया डिकोडर. नाउ इस वेरिएबल के बाद क्या, वी हैव स्टार्टेड अवर डिकोडिंग प्रोसेस, डिकोडिंग स्टेप्स. ठीक है. तो वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल कॉल्ड डिकोडर, एंड व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी कन्वर्टिंग I'll be converting this decoder, sorry, I'll be converting my string, base 64 string का जो मेरे पास string है, so I'll be converting it into byte array again. ठीक है. And for that what I have to do, I have to just use system dot convert from base 64 string. It's a type of function of class system dot convert. मेरी class है. ठीक है. And this function is from base 64 string. The string will be under this. ठीक है. एंड इसका जो आउटपुट होगा बाइट एरे के तौर पे होगा. ठीक है. नाउ एट द एंड व्हाट वी हैव टू डू, क्रिएट अनदर वेरिएबल कॉल्ड str अंडरस्कोर आउटपुट. ये मेरा लास्ट वेरिएबल है, इसके अंदर मेरा हेलो वर्ल्ड दोबारा से जाके स्टोर हो जाएगा. कैसे, लेट्स सी. सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट इनकोडिंग डॉट UTF-8, ये तो आपके पहले वाले की तरह सेम है, देख सकते हैं. जो आपने पहला एक्सप्रेशन यूज किया था वो सेम था. यहाँ पे what we are doing, we were getting the bytes from our string and converting it into a byte array. But here what we are doing, आपको दिखाए तो, here we are getting the string of from the byte array. So if we are getting the only the string, so there is no need to create any array, right? And इसका आंसर भी है जो आपका देख सकते हैं as string. यहाँ पे अभी आपने देखा, it is expecting a byte array and its output is in the form of a string. Obviously that will be our hello world. मैंने आपको रन करके भी दिखाया. ठीक है. सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा ये क्या हुआ है इसमें. इस वॉज जस्ट अ स्मॉल टिप वीडियो. ठीक है. सो एक्चुअली मुझे भी ये पता नहीं था, मेरे को किसी ने बताया आज. ठीक है. सो रियली थैंक्स टू दैट गाय, एंड जिसने मुझे बताया कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं. बिकॉज आई वॉज नोइंग द नेटवर्क क्रेडेंशियल मेथड, दिस इज द मोर कॉम्प्लेक्स मेथड, एंड आई गॉट टू नो इट टुडे. मैंने अच्छे से समझा उसको, एंड अभी मैंने आपके सामने ये वीडियो लेके आ गया. एज यूजल गाइज, मेरे चैनल पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे आता है. कुछ मैं नया सीखूंगा उसी दिन आपको वीडियो मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे आपको वीडियो उस पर मिल जाएगा. सो विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन अ डेली बेसिस. ठीक है. सो दैट यू गाइज हैव अ गुड रिफ्रेशर ऑन यूआई पाथ. अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है आई एम देयर फॉर यू. Anything you have to ask about UiPath, any activity, anything is ask me in the comment section. Please share this video as much as possible. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. If you have already subscribed, don't forget to push that bell icon so that you know that whenever a new video has been uploaded, you know have the notification as well. Thank you so much for being here, and as always, keep learning.